So this was very clear that if we go after this problem statement, then this will be not just about used cars, but this will be more about solving for trust. And since very special purchase for people, so solving for experience also. So more about building a brand that relates with aspirations of the new age young people and is willing to do anything to solve for their aspiration. So मेरे को वो clear opportunity दिख रही थी कि because of the nature of the purchase, very important, very aspirational, emotional, special purchase and transaction process and the purchase process is completely broken. So अगर इसको सही तरीके से solve कर दिया, right? Then because of the nature of the purchase, we have a clear shot at building a central brand of the country, right? Not just the central brand of the category. I am saying central brand of the country. Welcome to X Unicorns, a podcast brought to you by Bloom Ventures. Bloom is one of India's premier homegrown early-stage venture capital funds. If you're asking yourself what in the world is an X-Unicorn, rewind to episode 1 where we share the origins of the term X-Unicorns. We promise it'll be worth your time. In this series of conversations, we want to look back and celebrate founders and startups that have entered and are soon entering the X-Unicorn Club. Stories of founders that have played it by their rules and taken unconventional or even long drawn-out paths to get there. In today's episode, we have Neeraj Singh, founder and CEO of Spinny, in conversation with Arpit Agarwal, director at Bloom Ventures. हेलो एवरीवन, आज हमारे गेस्ट हैं नीरज सिंह। नीरज के साथ काफ़ी ज़माना हो गया रिलेशनशिप रखते हुए और हम लोगों ने स्पिनी में इन्वेस्ट किया था 2015 में और तब नीरज वाज बिल्डिंग दिस वेरी अर्ली कंपनी कॉल्ड स्पिनी अबाउट यूज कार रिटेलिंग। और उस समय ये सोचना काफी मुश्किल था कि इतने सारे यूज कार डीलर्स हैं दुनिया में, हमारे देश में हर कोने में यूज कार डीलर है, तो एक नई कंपनी क्या करेगी और कैसे करेगी ये कहना काफी मुश्किल था। बट नीरज, मोहित और हिमांशु जो साथ में जुड़े और उन्होंने ये स्टार्ट किया, ये बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है टू थिंक अबाउट how they have managed to solve the problems. Neeraj himself is a very exciting and a very inspiring entrepreneur. Neeraj, welcome to the show. I find it fascinating that all this life you have actually been only an entrepreneur, never tried to find a job. Generally होता क्या है, IIT में निकलते हो आप, जॉब की कोशिश करते हो और अच्छी जॉब मिल भी जाती है और स्मार्ट लोगों को तो ऑब्वियसली कोई लिमिट नहीं है। कैसे हुआ कि आपने जॉब नहीं सोचा और हमेशा ही स्टार्टअप किया? पहले लोकस, फिर टेक मंकी किया। At what point did you know that entrepreneurship is it? This is what you wanted to be? So Arpit, I believe your experiences shape you as a person. And मेरी काफी बचपन से आदत रही हुई कि always not just doing the first order thinking, second order thinking भी. And थोड़ा credit physics को भी दूंगा. So in my school days, class 9th, 10th, 11th, 12th, IIT entrance, so I was, madly in love with physics. So वहाँ से I think personal life में भी regarding everything, that kind of attitude develop हो गया था. अभी भी मतलब team में मेरी regular जब भी discussions होती है regarding anything, तो I keep basically pushing for second order thinking, third order thinking, not just the first order thinking. So during college days जब सोचता था, फर्स्ट ईयर में थिंकिंग कुछ और थी कि कॉलेज के बाद क्या करना है, बीटेक के बाद क्या करना है। सेकंड ईयर में वो थोड़ी चेंज हुई, थर्ड ईयर में थोड़ी चेंज हुई, फोर्थ ईयर में कंप्लीटली चेंज हो गई। तो वो थिंकिंग करते करते टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अर्ली बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर समझ में आया कि लाइफ में अगर कुछ इम्पैक्टफुल करना है, इफ यू वांट टू हार्नेस योर फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में ये फुल पोटेंशियल क्या होता है? कहने की बातें लग रही, कहने की बातें नहीं है, जहाँ पे तुम अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट लिमिट तक पुश कर पाओ एंड उस लिमिट को भी बार बार रीडिफाइन करते रहो, सीलिंग को तुम डिफाइन करो क्योंकि तुम्हारी पोटेंशियल। पर एक 22 साल 21 साल के लड़के के लिए ये सोचना कि कोई लिमिट है मेरी, यही बहुत बड़ी बात है। और जॉब में वो लिमिट नहीं टूटेगी तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? कोई सिंगल पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या बहुत बड़े बड़े ऑर्ग्स या इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं। सो दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट कंपनी और बिजनेस और एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी गेन। दिस वाज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट, राइट? दिस is more about what is the largest platform you can build, what is the largest impact you can create. So having that
kind of mentality, that kind of thinking. सो नीरज, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पता लगा कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप करना है? आईआईटी के बाद बहुत सारे लोग आपके अच्छे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जॉब लेते गए होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे आज लाइफ में। 15 साल के बाद कोई लिमिट तो नहीं है। अब हाउ डिड यू नो दैट यू वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर? So, while doing those thinking, जब मैं कॉलेज में था कि लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड जब तुम वहाँ अगेन सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करते हो, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैं किसी जॉब से स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा फील हो रहा था कि वो जर्नी काफी लीनियर काइंड ऑफ है। उसको किस पॉइंट पे और कितने टाइम के बाद एक्सपोनेंशियल बना पाओगे, उस पे आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ कंफर्ट। बट एट द सेम टाइम मेरे को ये पता था कि जर्नी माइट बी वेरी डिफिकल्ट, लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। और लोग बेवकूफ बोलेंगे, लोग बेवकूफ बोलेंगे। 2000 बोले भी होंगे शायद। 2007 में तो स्टार्टअप टर्म एग्जिस्ट भी नहीं करता था। Right, I think around 2010 and 2011 or maybe 12 people started using these terms, right? जब हम लोग first company start कर रहे थे, मतलब मैं intentionally company बोल रहा हूँ, तो उस टाइम तक VC word मैंने कभी सुना ही नहीं था लाइफ में। VC मुझे पता ही नहीं था VC क्या होता है। तो उस टाइम startup type buzzword exist नहीं करते थे। Of course acceptance तो बहुत दूर की बात है, awareness भी नहीं थी। तो there was lot of pushback, lot of resistance, friends from family, from well-wishers. So प्रॉब्लम्स तो थी। तो जब डिसाइड कर रहे थे हम लोग कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, जॉब के लिए ऑप्ट नहीं करना है, ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, राइट? एंड लॉट ऑफ वी न्यू कि ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है, काफी रिस्क होगा, फेल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम द डिजायर टू बिल्ड समथिंग ऑफ ओन एंड फाइनली मेकिंग इट बिग एंड फाइनली क्रिएटिंग लार्ज इम्पैक्ट वाज सो इंटेंस दैट वी थॉट कि यार लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट डिजायर, दैट पैशन। तो जब हमने डिसाइड किया कि कॉलेज के बाद हम लोग जॉब में नहीं जाएंगे एंड खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे, तो वी वर ट्राइंग टू आंसर 2 क्वेश्चंस। वन कि खुद का कुछ करना है, एंड सेकंड कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो मतलब उतने यंग एज में दैट माइट साउंड बिट नाइव, बट दिस इज व्हाट इट वाज। एंड दोनों क्वेश्चंस का जो कॉमन आंसर था दैट वाज लाइक डू समथिंग इन एजुकेशन, बिल्ड समथिंग इन एजुकेशन। तो खुद का कुछ बिल्ड भी कर रहे हो एंड मे बी सोसाइटी का बेनिफिट भी हो रहा है। तुम नेक्स्ट जनरेशन की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, उनकी फिलॉसफी मे बी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हो। तो आइडिया वाज नॉट टू डू जस्ट IIT entrance coaching. Real idea was to build an open education online platform, something like Khan Academy you see today. So we wanted to build something like that back then. हमें लगा कि एक open education online platform build करते हैं जहाँ पे सारे लोग आएंगे, contribute करेंगे and उसको leverage करेंगे. So students, teachers, mentors, schools and other institutions. So that is the kind of open education online platform we wanted to build. That was the real idea. But as I already said, हमें उस time तक VC और other kinds of fundings के बारे में कुछ भी पता नहीं था। And we knew कि ये जो open education online platform build करना है, that will require lot of resources. You need to build the platform, तो सारे वहाँ पे product and tech related resources चाहिए. Then you need to seed the content, then you need to seed the users, you need to spread the awareness. तो we knew कि इसमें काफी time, काफी hard work, and just time and hard work won't be enough. There will be lot of resource requirement also. And resources आएंगे कहाँ से? And we were very confident about our respective. तो बेसिकली सब कुछ साथ स्टार्ट हुआ था। तो ओरिजिनल आइडिया वाज टू बिल्ड दिस ऑनलाइन ओपन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, एंड इसके लिए रिसोर्स अरेंज करने के लिए हमने IIT एंट्रेंस क्लासेस स्टार्ट किया था, बिकॉज वी न्यू कि वो स्टार्ट करने के लिए हमें कोई कैपिटल नहीं चाहिए, राइट? एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल डू गुड इमीडिएटली, वी विल बी एबल टू बिल्ड अ गुड ब्रांड एंड दैट बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल, एंड वहाँ पे वी विल बी एबल टू जनरेट सिग्निफिकेंट सरप्लस, एंड जो भी सरप्लस जनरेट होगा वी विल यूज दैट टू बिल्ड दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो दैट वाज द होल आइडिया. द कोचिंग part, the IIT entrance classes part was to basically generate resources to build that online platform. वेरी कूल. स्पिनी का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि ये तो आपके लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था. आई नो यू लव कार्स, तो कार्स का एक लव तो काफी सालों से था, लेकिन स्पिनी का आइडिया कहाँ से आया और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि यार ये गैप है जो आपको दिखता है बहुत जल्द, बहुत अर्ली मार्केट में, बट नो वन एल्स इज एबल टू सी. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द आइडिया स्पिनी? फर्स्ट स्टार्टअप है लोकस, वी ऑपरेटेड फॉर क्लोज टू 4 years. उसके बाद फिर सेकंड स्टार्टअप किया टेक मंकी, दैट वाज इनटू वेब मीडिया, उसको भी क्लोज टू 3.5 years ऑपरेट किया. तो जब टेक मंकी से मूव ऑन किया, देयर वर सम इश्यूज एट टेक मंकी जिसकी वजह से आई हैड टू मूव ऑन. बट वहां से मूव ऑन करने के बाद दैट फेज इन माय लाइफ वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, राइट? सो ऑफ कोर्स मतलब कॉलेज कंप्लीट किए हुए 7-8 years हो गए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, यू डोंट हैव एनीथिंग, राइट? सो वेरी डेस्परेट टाइम्स. सो बट स्टिल आई वाज नॉट giving up on the entrepreneurship. मेरे को लगा कि this is already kind of
रॉक बॉटम, इससे नीचे ये इससे खराब सिचुएशन क्या हो सकती है. सो एंड तब तक कुछ लर्निंग एक्युमुलेट हो गई थी. आई थॉट कि एंटरप्रेन्योरशिप पे गिव अप नहीं करते, बट एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो क्लियर कि लाइफ में रोज रोज फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते. सो व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार इस बार हेस्ट में कुछ भी स्टार्ट नहीं करते. नेक्स्ट जो भी करूंगा एक बार बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, हाँ, सोच के अगर बनाएंगे. 2 बार अटेम्प्ट ले सकते हैं तो थर्ड टाइम भी ले सकते हैं, बट अगेन फ्लिप फ्लॉप बार बार कर नहीं सकते. सो अब वॉट एवर आई डू नेक्स्ट वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए. लेकिन इसकी गारंटी तब भी नहीं है कि वो इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा. ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप में वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. तब भी एक क्वेश्चन, तब भी एक कॉल लिया, बिकॉज इवन एट दैट पॉइंट एंड देन इकोसिस्टम हैड स्टार्टेड टू बिल्ड, यू कुड हैव फाउंड अ रीसेंट जॉब, राइट? और यू वर ऑलरेडी मेकिंग एंजल इन्वेस्टमेंट. थोड़ा उसके बारे में बताओ. आई वॉज नॉट गिविंग अप एंटरप्रेन्योरशिप, दैट वॉज वेरी क्लियर. सो आई थॉट कि फिर से थर्ड अटेम्प्ट लूंगा, फिर से खुद का ही कुछ बिल्ड करूंगा. आई टेक वन मोर शॉट, बट इस टाइम जो भी ट्राई करूंगा, राइट, वो प्री डिफाइंड टाइम बाउंड प्रोजेक्ट नहीं होगा कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ 4 year 6 year प्रोजेक्ट. सो लंबा मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, अनडिफाइंड होगा, 10 years 20 years रेस्ट ऑफ लाइफ. एंड आउट ऑफ दैट एंगेजमेंट जो भी बिल्ड करूंगा वो डिकेड्स लॉन्ग माइंडसेट से बिल्ड करूंगा. सो यार तुम जब क्लास 7 में होते हो, व्हेन यू आर इन स्टैंडर्ड 8 7 हाई स्कूल, राइट, तो उस टाइम से वो लाइफ में मतलब एफर्ट लगाने वाली जर्नी चल रही है, राइट. वो फाइट तब से चल रही है. सो यू आर ट्राइंग टू गेट अ गुड स्कोर, देन यू आर ट्राइंग टू टॉप इन योर क्लास, देन क्लास 10th बोर्ड, देन 12th बोर्ड, देन IIT एंट्रेंस. वो एफर्ट चला ही जा रहा है. देन कॉलेज में उसके बाद आपने उसके बाद 4-5 साल फर्स्ट स्टार्टअप, देन 3.5 years सेकंड स्टार्टअप. तो देयर इज ऑलरेडी अ जर्नी ऑफ 15 years, राइट, दैट यू हैव कंप्लीटेड, राइट, टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ. एंड आगे अब तुम 10-15-20 years के फर्दर कमिटमेंट की बात कर रहे हो. वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स. करेक्ट. 12 साल से लेकर 40 साल हो गए और अभी आगे और करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप लोग डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो दैट मस्ट पॉइंट टू समथिंग मीनिंगफुल होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इम्पैक्ट एट स्केल होना चाहिए, सेटिस्फाइंग होना चाहिए, राइट. तो आई थॉट कि अब जो भी बिल्ड करेंगे नेक्स्ट, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्ड करना है. एंड आउट ऑफ दैट एंगेजमेंट जो वर यू रीडिंग समथिंग, डिड यू स्पीक टू समवन? नो, इंस्पिरेशन कहां से आती है? खुद का इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से आती है. इंट्रोस्पेक्ट करते रहो, बी ओपन फॉर फीडबैक, राइट. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ सिग्नल्स व्हिच गिव यू. Does it have anything to do with the brief period of active angel investing that you वहीं were doing? पे मैं वहीं जा रहा था. तो when it was very clear कि यार नेक्स्ट जो भी करना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना है, सो एंड अगर उस माइंडसेट से एग्जीक्यूट करना है, वैसे ओरिएंटेशन से बिल्ड करना है, तो यू कांट स्टार्ट इन हेस्ट, राइट. उसको फोर्स इंजीनियर नहीं कर सकते. सो आई थॉट दैट आई विल अलाउ माई सेल्फ सम टाइम, विल बिल्ड फॉर राइट कन्विक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फॉर समथिंग, जहाँ पे मेरी एक सर्टेन रिलेटेबिलिटी भी हो, बहुत हाई लेवल ऑफ कन्विक्शन हो, क्लियरली दिख रहा हो कि लॉन्ग टर्म उसको बिल्ड करने का रियल पर्पस क्या होगा. सो आई थॉट कि फॉर दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी इट्स ओके टू वेट फॉर सम टाइम. एंड वो जो थोड़ा फ्री टाइम था उसमें मुझे लगा कि यार आई कैन डू एंजल इन्वेस्टमेंट्स इन दिस फ्री टाइम. एंड थिंकिंग ये थी कि इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिकवर और मल्टीप्लाई माई मनी, एटलीस्ट कुछ लर्निंग तो आएगी. Would you advise people who want to start up doing angel investing before they start up? अगर पैसा है तो या एक्सेस है तो? आई थिंक अगर टाइम और पैसा दोनों है तो दे शुड डेफिनेटली ट्राई. बट जिस टाइम पे मैं कर रहा था उस टाइम, और दिस इज late 14 Late and 14 early 15. Okay. So there were a very limited number of angel investors, right? So you would get FaceTime with founders. You will get the opportunity to, interact with them, Learn hear from their them, journey. learn from their journey. And you could Investors see a के लिए- pattern saying which are the better entrepreneurs and maybe there's something to learn from there. And what's working, what's not working. ऐसा नहीं है कि जिनके केसेस में चीजें क्लिक कर रही हैं सिर्फ वहीं पे लर्निंग है. आई थिंक जहाँ पे फेलियर है वहाँ पे भी इनसेन अमाउंट ऑफ लर्निंग है, राइट. तो आज जो एंजल इन्वेस्टमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट है, दे आर मतलब hundreds and thousands ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट. हाँ, कोई फेस टाइम नहीं है, कोई founder के फेस साथ. टाइम नहीं है. तो आई थिंक अभी जो एंजल इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, राइट, स्टिल देयर आर रियली गुड इंडिविजुअल्स हु आर डूइंग इट फॉर द राइट कॉज. बट जिस तरीके का वहाँ पे एक हार्ड मेंटालिटी बिल्ड हो गई है, सो फॉर मेनी पीपल इट्स अ प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. एंड एंजल इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. मतलब आई एम नॉट फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट. सो एंड अगर लर्निंग के लिए, एंड कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि लर्निंग के लिए फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को, फाउंडर्स को एंजल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप लर्निंग के लिए करना चाह रहे हो, फ्यूचर फाउंडर बनना चाह रहे हो, देन आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ डील फ्लो यू विल गेट, राइट, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ फेस टाइम यू विल गेट. वो लर्निंग होगी या नहीं होगी, सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट इन दिस एनवायरनमेंट.
So there are a lot of people who want to learn and people who also have money sometimes. So I've started advising those friends that they should start making small angel investments, because only when they make an angel investment they can really at least have one call with the founder maybe in a month. So वो एक चीज है जिससे कि शायद थोड़ा फायदा होता है. इस इन्वायरमेंट में पता नहीं फाउंडर वो वन कॉल एवरी एंजल इन्वेस्टर को देगा नहीं देगा. एंड आई एज अ फाउंडर आई कैन टेल यू दैट इज अ काइंड ऑफ न्यूसेंस आल्सो, राइट. सो जैसे जैसे कंपनी में राउंड्स होंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, और सारे इन्वेस्टर्स अगर तुम वन ऑन वन कॉल करने लग जाओ एवरी मंथ, देन दैट्स वेरी पेनफुल. फेयर एनफ. ओके, स्पिनी वापस आते हैं. सो यूज्ड कार अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन यूज्ड कार में बहुत सारे लोग इंडिया में शायद 10-20 हजार तो डीलर होंगे, और ज्यादा होंगे, शायद 50 हजार डीलर होंगे, और उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे, थे उस समय भी. आपको क्या लगा कि वहां पर अपॉर्चुनिटी कैसे है और क्या गैप है मार्केट? When I was planning for my third startup after moving on from my second startup, as I just told you, I was very clear कि long term perspective से करना है. And if you look at my journey since my childhood, I come from a very small town in Jharkhand. Name of the town is Daltonganj. So coming from that kind of place, then doing IIT in Delhi, then my first startup in education, and उसमें जो IIT entrance वाला हमारा vertical था, तो meeting lots of parents on daily basis, then doing second startup in web media, जहाँ पे you are doing lots of research on every aspect of the life of the society of the country, about people. So and then doing angel investments, so meeting all kinds of founders, trying to build something in different areas. So if you look at my whole experience or exposure, whatever you call it, so I was able to see the entire spectrum of the Indian society from one extreme to another, and it was very clear to me कि जो मेरी journey है, right? So what is the typical journey of a common person in India? You come from a small town, then study is your basically ladder to success or whatever you want to do in life, right? Yes, मतलब पढ़ाई के अलावा और कोई तरीका है नहीं. So that is the proven basically thing for everybody. So आप छोटे टाउन से आते हो, ट्राई करते हो कि आप स्टडीज बहुत अच्छा करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, then you start with a job, then you try to do good at your first job, you start doing better in your professional career, and when you start earning, you buy your first car. When you start doing better in your career, you buy a better car. Maybe you are buying a car for the second time, and that would be much better than your first car. Then you get married, you buy a house. So ये एक typical journey होती है, right? And most लोगों की journey या तो ये है या ऐसी journey वो aspire कर रहा है. Correct. So everybody is basically on this journey or aspiring to be on this journey. So I was clearly seeing कि यार ये सबकी जर्नी है, और इसमें जो 3-4 की इवेंट्स हैं, हाँ, माइलस्टोन्स हैं. हाँ, माइलस्टोन्स हैं, like getting your first job, right? Buying your first car, after some time buying a better car, getting married, buying a house. उसके बाद फिर you have kids, and वो एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है. बट इस पूरी जर्नी में if you look at the 2-3 key purchases, right? Those 2-3 key purchases are buying your first car, buying your house. So these are very important milestones, very important events in anybody's life. And when you are buying your first car, that is the first purchase of that kind of speciality. So very, very long-term purchase. It is I would probably say this very all of this- special, very special very purchase. special moment, Yes. and very, very aspirational purchase, very emotional purchase. So net very special purchase for people. और वो एक्सपीरियंस याद रह जाता है. बिल्कुल. One of the most important milestones, events or moments for anybody. मुझे अभी भी याद है पहली कार खरीदी थी मैंने. इट वाज अ यूज्ड कार, और मुझे एक्सपीरियंस याद है. मुझे एग्जैक्टली याद है मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, कैसे And पहुंचा when you था. are buying your first car, तो तुम थोड़े young हो, अपने career में भी early हो, तो kind of you will have a limited budget. But since this is a very aspirational and special purchase, emotional purchase for you, so you would want a car that can match your aspiration उसी limited budget में. So then you will start looking out for options in second-hand car market also, right? So, but the purchase remains very special for you, and because of that, you have certain kind of expectations around quality, around performance, around transparency, around overall experience, and the kind of treatment you get in the market is exactly opposite. So I was very much
much able to relate to this, and I was like, if we go after this problem statement, this won't be just about the used car market opportunity or Indian automobile opportunity. This will be more about solving for quality, solving for transparency, solving for accountability, solving for fairness. इन सबको अगर मतलब common packaging करें तो basically more about solving for trust. So this was very clear that if we go after this problem statement, then this will be not just about used cars, but this will be more about solving for trust. And since very special purchase for people, so solving for experience also. So more about building a brand that relates with aspirations of the new age young people and is willing to do anything to solve for their aspiration. So मेरे को वो clear opportunity दिख रही थी कि because of the nature of the purchase, very important, very aspirational, emotional, special purchase, and purchase process and transaction process and the purchase process is completely broken. So अगर इसको सही तरीके से solve कर दिया, right, then because of the nature of the purchase, we have a clear shot at building a central brand of the country, right? Not just the central brand of the category. I am saying central brand of the country, right? Because बहुत इंपॉर्टेंट परचेज है, कंप्लीटली ब्रोकन है. अगर इसको सॉल्व कर दिया, देन यू विल क्रिएट अ वेरी स्पेशल प्लेस इन पीपल्स हार्ट्स. और ये लाइफ लॉन्ग है. लाइफ लॉन्ग है. एक बार स्टार्ट किया तो हम बहुत कुछ कार्स भी करेंगे, उसका कुछ और भी तो करेंगे. मेरे को वही लगा कि एक तो कि यूज्ड कार मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बड़ी है, तो यू आर चेजिंग अ लार्ज अपॉर्चुनिटी, नंबर वन. नंबर टू, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट chasing that opportunity. This is more about building a brand that is synonym of trust and experience. So तुम basically net trust and experience के लिए solve कर रहे हो. तो very satisfying, very fulfilling journey. पता नहीं वो build होगा नहीं होगा. Of course, there will be a lot of effort. In case you end up building a brand like that, you will inspire more and more people to do a work like that. In a way, you will be building a benchmark. नीरज, एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? ये जो आपकी इनसाइट है, ये इनसाइट बहुत लोगों को हुई होगी शायद, और जो लोकल डीलर है, जिस लोकल डीलर की बात करते हैं, वो क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं इस चीज को अपने एंड? जो लोकल डीलर है वो एक बेसिकली प्रोप्राइटरी बिजनेस चला रहा है, छोटा मॉम एंड पॉप शॉप काइंड ऑफ बिजनेस चला रहा है. उसकी लाइफ की सर्टेन नीड्स है एंड उस नीड को एक छोटे स्केल के बिजनेस तो सॉल्व कर रहा है, राइट. तुम मतलब मेरे से ये नहीं पूछ सकते हो कि तुम्हारे घर के बगल में अगर मतलब एक कपड़े की दुकान है तो फिर मतलब यू नो व्हाई देयर शुड बी अ मिंत्रा और अमेजॉन, राइट, और फ्लिपकार्ट, राइट. इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें घर के आसपास भी मिल जाएगा, बट स्टिल सो तो छोटे जो स्टोर्स है, राइट, तो वहां पे आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं, राइट, या लेमन ही बेच रहे हैं. देयर आर गुड पीपल देयर ऑल, बट देयर रीजन टू डू दैट बिजनेस इज एंटायरली very different as compared to what you were. Exactly. So the key insight is that there's a gap between what you started, what you stand for, as compared to what the local dealer may have stood for. और उसके बाद जो मार्केट में, then of course marketplaces have come, classified places have come. So basically अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो कस्टमर की जो नीड है दैट वाज कंप्लीटली अनअटेंडेड. कस्टमर की नीड क्या है, राइट? सो जो यूज्ड कार बाइंग का इनहेरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन है वो कस्टमर को ऑलरेडी क्लियर है, राइट, कि व्हाटएवर द यूज्ड कार बाइंग इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग लिमिटेड ऑन द बजट साइड. मतलब हो सकता है कि तुम्हारी बजट मतलब डिसेंट बजट है, राइट, बट इन द सेम बजट यू कैन गेट अ मच बेटर प्रोडक्ट. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, राइट. सो लेट्स से इफ योर बजट ऑफ लेट्स से 9 lakhs, तो 9 lakhs में ऐसा नहीं है कि यूज्ड कार बाइंग केवल 2 lakhs 3 lakhs में हो रही है, जिनके पास बजट प्रॉब्लम है, बजट कंस्ट्रेंट. 25 लाख की भी हो रही है, 25 लाख की भी हो रही है, 40 lakhs की भी हो रही है. तो लेट्स से इफ योर बजट ऑफ 9 lakhs, तो 9 lakhs में तुम्हारी चॉइस है. तुम न्यू बलिनो भी बाय कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो बाय अ रियली गुड सेकंड हैंड होंडा सिटी, रियली गुड यू नो टोयोटा ऑल्टिस. So if you have a budget of let's say 5.5 lakhs, so 5.5 lakhs mein, if you go to buy a new car, maybe you will end up buying WagonR. But if you are open to buy a second-hand car, you can buy a really good Ford EcoSport, right? You can buy a Honda City, Swift buy कर सकते हो. Product ही change हो जाता है. तो ये an experience change हो जाता है. तो ये प्रोडक्ट मतलब नेक्स्ट लेवल है तो एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल होगा. तो ये जो यूज्ड कार बाइंग का जो इनहेरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन है वो कस्टमर को. This is exactly what I did. I had exactly enough money which I could have gone and bought a WagonR, but I chose to buy a Swift second hand, right? This is exactly, and I must admit that I still have that car. If I was driving that car 9 years later, I would not be as satisfied as I am today with a Swift. It's a completely different experience. तो ये जो इनहेरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन है यूज्ड कार बाइंग का, ये कस्टमर को ऑलरेडी क्लियर है. What they were basically missing, right, is the right seller जिस पे blind faith हो. So I think जो new car buying experience हो, so you are not worried about the quality of the car. In case of new car, the product is very standard. So you know what is your budget
एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि उस बजट में तुम्हें बेस्ट मॉडल क्या मिल सकती है एज पर योर नीड्स. तो आई थिंक यूज्ड कार बायर भी सेम तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना चाहता है, राइट? यूज्ड कार बायर पे जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है कि फिगर आउट करो कि कार की क्वालिटी सही है या नहीं है, कार की हिस्ट्री सही है या नहीं है, तुम्हें कार की पूरी इन्फॉर्मेशन राइट वे में प्रेजेंट की जा रही है नहीं जा रही है, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, ये सारी चीजें कंप्लीटली अनआंसर्ड थी. तो मेरे को बहुत क्लियर हो रहा था कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, राइट? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे पता है मेरी बजट कितनी है एंड उस बजट में मुझे बेस्ट कार क्या मिल सकती है. मेरा फोकस सिर्फ वही होना चाहिए, राइट? उसकी क्वालिटी एसेस करो, उसकी हिस्ट्री एसेस करो, उसके आगे की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करो. आई डोंट वांट टू गो इन दैट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग और दैट काइंड ऑफ असेसमेंट. ना तो मेरी वो एक्सपर्टीज है, ना मैं उसको एंजॉय करता हूँ, ना मैं उस पर कभी श्योर हो पाऊंगा एंड ना मेरे पास उतना टाइम है, राइट? तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि देयर शुड बी अ ट्रस्टेड ब्रांड जिसको लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करें. आपको कैसे लगा कि आप ही राइट एंटरप्रेन्योर हो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर प्रोडक्ट फिट, फाउंडर मार्केट फिट. वो थोड़ा ऑड है बट So when we were starting up, so there were already lots of startups in the used car market. मतलब लोग बोलते थे कि यार this space is already crowded and lot of funding has already gone into the market. So there is no point, there is no space for a new player. I think तुम्हें भी लोग बोलते होंगे बिल्कुल बोलते हैं, हाँ. इन्वेस्ट किया था कि यार ऑलरेडी इतने लोग हैं, क्यों एक और नए प्लेयर को इन्वेस्ट कर रहे हो? तो मेरे को लगा कि the kind of purpose we have, we are a very purpose driven company, right? तो मेरे को लगा कि सबके अपने अपने रीजंस हैं. किसी के पास ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को लेवरेज करना चाहता है, तो ऐसे रीजन सबके पास अपने अपने रीजन है. बट द काइंड ऑफ पर्पस ड्रिवन वी वर विलिंग टू फॉलो, मेरे को लगा कि दैट विल बी गुड इनफ फॉर अस. बट पर्पस ड्रिवन अगर आप मान लो एजुकेशन के लिए होते या फिनटेक के लिए होते तो भी शायद उतना ही सक्सेसफुल होते या नहीं होते. यार पर्पस ड्रिवन तो हर जगह होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा. लेकिन पड़ेगा. इस मार्केट में आप पर्पस ड्रिवन सबसे ज्यादा हो, ये कैसे पता? सबसे ज्यादा की कोई जरूरत और कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको लगा कि ये हमारे लिए पर्पस है, हम इसको फॉलो करेंगे. एग्जैक्टली. उस पर्पस से आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और वैल्यू क्रिएट करोगे तो कस्टमर आपको रिवॉर्ड करेंगे. कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस इंडस्ट्री का आइडिया हो. स्टार्ट करते टाइम मेरी थिंकिंग ये नहीं थी कि हम लोग नंबर 1 बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे. बेसिकली मेरा फ्रेमवर्क ये था कि वेदर वी विल बी एबल टू गेट अ डिसेंट शेयर ऑफ द मार्केट, एंड उस पे मैं कॉन्फिडेंट था. तो रादर देन बिल्डिंग ओपिनियन ऑन अदर्स, आई वाज बिल्डिंग ओपिनियन ऑन आवरसेल्फ. दैट वाज द फ्रेमवर्क आई यूज्ड. दिस इज हाउ यू स्टार्टेड. चलो ग्रेट, स्टार्टअप हो गया. अब इसके बाद क्योंकि मार्केट अभी फिगर आउट करना है ना, एक्चुअली जो हमें सोल्यूशन है वो डिस्कवर करना है, और ये प्रोसेस होती है, इसको हम प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं. इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. इस प्रोसेस में आप होल्ड कैसे करते हो? हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड? क्योंकि आई नो दैट इट टुक यू अबाउट 3 years टू गेट देयर. वो पीरियड के दौरान हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड फॉर द राइट रीजंस एंड कीप चिपिंग एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वन बाय वन, धीरे धीरे. आई नो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हम यहाँ पहुंचे. वहां कैसे पहुंचते हैं लोग? अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं लोग? तो मैं बोलता हूँ बेसिकली एक थ्योरी है, 3 Ks और 3 Ks. 3 का है. 3 का है, क्या, क्यों, किसके लिए. इस पे क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट. व्हाट, व्हाई, हु, फॉर हु. यस, एग्जैक्टली. सो इस पे क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बिल्ड करना चाहते हो, क्यों बिल्ड करना चाहते हो, व्हाई दिस इज नीडेड, किसके लिए नीडेड है. अगर उस पे क्लैरिटी है तो आई थिंक यू विल कीप गेटिंग योर आंसर्स. एंड ठीक है, मतलब डिफिकल्ट फेजेस भी आएंगे, मल्टीपल नियर डेथ सिचुएशंस भी होंगे, तो ये चीजें तुम्हें नेविगेट करने में हेल्प करेंगे, राइट? दिस थिंग्स विल कीप यू गोइंग. बट अगर इस पे क्लैरिटी नहीं है देन एनीथिंग कैन हैपन. सो यू नीड टू बी रियली ऑनेस्ट, राइट? जिद का मतलब ये नहीं है कि तुम ऑनेस्टी से, देखो जिद और पागलपन में ना बहुत छोटी सी लाइन होती है, तुम्हें पता है. तो जिद, तो पैशन एंड मैडनेस, परसिस्टेंस एंड मैडनेस, इरैशनैलिटी में बहुत पतली लाइन होती है, और ये अपने को पता नहीं होता है एज एन एंटरप्रेन्योर कि हम कब ट्रेड कर जाएंगे. बट स्टिल तुम उसमें ऑनेस्टी ब्लेंड कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी से क्या मिलेगा. पैशन और जिद में मतलब ऑनेस्टी का स्कोप नहीं है. ऑनेस्टी से क्या मिलेगा? जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम चेस कर रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो सिवियरिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो हो सकता है कि उतनी नहीं हो जितनी तुम एसेस कर रहे हो. तो ये सारी चीजें ऑनेस्टी से ही तुम चेक करोगे. सो कस्टमर तो वैलिडेट करता रहेगा. कस्टमर को तो एग्जैक्टली, कस्टमर से तुम्हें फीडबैक आ रहा है. कस्टमर उस टाइप के सोल्यूशन कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए. तो पैशन और जिद का मतलब ये नहीं है कि यू बिकम क्लोज टू दोस थिंग्स. तो पैशन में तुम्हें ऑनेस्टी तो ब्लेंड करना ही पड़ेगा यार, देयर इज नो एस्केप. बट अगर तुम विद ऑल ऑनेस्टी राइट इंट्रोस्पेक्शन करो तो तुम्हारे पास ये आंसर्स होंगे जो मैं 3 Ks 3 Ks की बात कर रहा था. ये आंसर्स ऑलवेज होंगे. किसके लिए? हाँ, और अगर इस पे क्लैरिटी है और वो कन्विंसिंग एनफ है तो तुम्हारा पैशन जो है ना वो और मेनीफोल्ड बूस्ट हो जाएगा. लेकिन इन्वेस्टर मार्केट थोड़ा यूनिक है. हमारा मार्केट बहुत यूनिक है, जो वैलिडेट नहीं करता काफी दिनों तक. टिल यू फाइंड ग्रेट पीपल
who believe in you. Obviously कंपनी को पैसे चाहिए रन करने के लिए, बिजनेस डिफिकल्ट है, वहां पर फिर आपको लगता नहीं अरे हम सही कर रहे हैं कि नहीं? हमने स्टार्टिंग में C2C मैनेज्ड मार्केटप्लेस मॉडल से स्टार्ट किया था स्पिनी, एंड यू फर्स्ट टाइम यू इन्वेस्टेड इन दैट मॉडल ओनली, एंड दैट मॉडल डिडंट वर्क, एंड द क्लियर टेक अवे फ्रॉम दैट मॉडल वाज कि द मॉडल हैज टू बी अ फुल स्टैक मॉडल, जहाँ पे यू ओन द एंटायर वैल्यू चेन एंड टू एंड। बिना पूरे वैल्यू चेन को ओन किए तुम मतलब इंटेंट तुम्हारी सही हो सकती है, बट उसके बावजूद तुम क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते, तुम प्रोसेस सीमलेस नहीं बना सकते हो, तुम प्रोडक्ट की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, तुम ग्रेट एक्सपीरियंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्लियर टेक अवे ये था कि फुल स्टैक मॉडल होना चाहिए। तो वी रीच्ड, यू रिमेंबर दैट टाइम, राइट? सो अर्ली 17 kind of we restarted from scratch with our current model, which was full stack model. So of course उस time full stack models की acceptance नहीं थी investors में, right? And hence we had really tough period of little more than 2 years. Yes. So we started our new model in early 17. And April 19 was the time when we closed our Series A round of funding. So for more than 2 years, literally we had no money. And I think that is what you meant कि investor validation नहीं मिल रहा है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ना ये दे आर कीपिंग फोन चिपिंग, वो कस्टमर एडिशन है लेकिन बिजनेस को पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो फिर आप ड्राई हो जाओगे ना। और अगर आपने उस 2.5 साल में अगर गिव अप कर दिया होता तो वहां पे 2-3 चीजें हैं। पहला तो कि रियल आंसर्स इन्वेस्टर्स से नहीं आएंगे, रियल आंसर्स कस्टमर से आते हैं। सो अर्ली डेज में व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी हम्बल स्केल, वन मेट्रिक यू शुड वेरी क्लोजली ट्रैक कि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने नए कस्टमर लेके आ रहा है। और मेरे को याद है गुड़गांव हब में फर्स्ट हब हैड 30-40% वॉक-इन्स, राइट? एंड दिस वाज अमेजिंग। मैंने कभी नहीं सुना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए 30-40% वॉक-इन्स हो रहे हैं विदाउट एनी स्पेंड, व्हिच मींस एवरी सिंगल कस्टमर इज टेलिंग टू देयर पीपल अराउंड देम, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबरहुड, कि ये तरीका है कार खरीदने का। अर्पित, इन दोज डेज what we were seeing on daily basis, ये कस्टमर अपने किसी दूसरे फ्रेंड को लेके आया है and he is doing the selling, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? सो एंड वी वर सीइंग कि सेम एक्सटेंडेड फैमिली में या सेम फैमिली के फर्स्ट डिग्री नेटवर्क में विद इन 6 months, विद इन 12 months 6-6, 7-7 कार्स जा रही है। लोगों से जो बोल रहे हैं कि मेरी सारी फैमिली ने स्पिन खरीदी। एग्जैक्टली। सो नो मार्केटिंग, नो ब्रांड अवेयरनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर सर्विस। दिस मस्ट बी वेरी मोटिवेटिंग ना। एग्जैक्टली, रियल आंसर वहां से आती है। तुम्हें समझ में आता है कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी डीप है या नहीं है, एंड इसको सॉल्व करने पे कस्टमर किस एक्सटेंट तक वैल्यू ऐड को एक्नॉलेज कर रहा है, तो वहां से आंसर्स आते हैं। आई थिंक इन्वेस्टर मीटिंग से तो आई डोंट थिंक अर्ली डेज में आंसर्स आते हैं, एंड दैट इज व्हाट केप्ट अस गोइंग। तो ग्राउंड पे मैं दिख रहा था कि यार प्रॉब्लम बहुत डीप है, लोगों को सॉलिड सोल्यूशन चाहिए, द काइंड ऑफ सोल्यूशन पीपल नीड, कोई भी प्लेयर उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो दैट इज something that really kept us going, and उसके चक्कर में मतलब कि हम लोग bridge then taking loans from friends and family, क्या नहीं किया। नीरज, I must admit, I first told you earlier also that मैं आपकी जगह होता तो मैंने गिव अप कर दिया होता, और मुझे नहीं पता कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो कि वो that you continue to go। जैसे जैसे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे तो ग्राउंड पे वो डेली बेसिस पे दिख रहा था कि इन्वेस्टर्स को बात नहीं समझ में आ रही है, बट द प्रॉब्लम इज रियल, द अपॉर्चुनिटी इज रियल, एंड ऑपरेट कर करके भी समझ में आ रहा था कि वी विल बी एबल टू ब्रिंग द राइट सॉल्यूशन फॉर द पीपल। तो वो हमें क्लियरली ग्राउंड पे दिख रहा था, हेंस वी वर नॉट गिविंग अप। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे जाते हैं। सो नाउ आपने, ठीक है, यू फिगर्ड आउट द मॉडल एंड थैंकफुली इन्वेस्टर्स केम इन, एंड देन यू आर ऑफ कोर्स 1-1.5 साल से उसके बाद काफी वेल एंड आउट बोलेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक तो हो गया प्रोडक्ट मार्केट फिट, विच इज ऑलमोस्ट day 0, इफ आई कुड से सो, day 1 ही, एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग फॉर स्केल। क्योंकि एक हमने जो मॉडल फिगर आउट कर लिया, इस मॉडल को रेप्लिकेट करना है, बड़ी टीम बनाना है, उस टीम के अंदर सारे राइट एथोस करने हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, आपके लिए क्या काम करता है? क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुम्हें पर्सनली क्लैरिटी होनी चाहिए, देन लीडरशिप टीम को क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड देन टॉप टू बॉटम टिल द लास्ट लेग वो क्लैरिटी लेवल सेम होनी चाहिए। वंस यू हैव दैट क्लैरिटी, अगेन वही बैक टू 3 Ks। हाँ, क्या, क्यों, किसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, राइट? ये हर मीटिंग के पहले पूछते हो क्या? किसके लिए कर रहे हैं ये, काइंड ऑफ ये स्पिनी का एंथम है, ये स्पिनी का वो है, मतलब मंत्र है। एंड अब तो कल्चर में ये इतना डीपली इंटीग्रेट हो गया है, राइट? इतना डीपली इंटीग्रेटेड है कि एक्सप्लिसिटली कॉल आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बड़ी कंपनीज का एक प्रॉब्लम है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो होता है छोड़ देते हैं। हम लोग नहीं क्या, छोड़ते, क्यों, किसके लिए, हम लोग नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग पूछना छोड़ देते हैं। मेरे को देखा है बहुत बड़ी कंपनी के बड़े लोग वो अपने उस रूटीन ब्यूरोक्रेसी में इतने फंसे रह जाते हैं that they are not able to break।
और स्टार्टअप में भी देखा है तो मैंने। वी आर वेरी माइंडफुल कि जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा हो रहा है, सो अननेसेसरली लेयर्स ना क्रिएट करें, ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट ना क्रिएट होने दें, राइट? एंड व्हेन आई से we are solving for trust for our customers, then you need to solve for trust internally first. तुम्हें उस टाइप का कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? ये पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, एंड ट्रस्ट को जज कैसे करोगे, ट्रस्ट को क्वांटिफाई कैसे करोगे? ट्रस्ट को क्वांटिफाई कर सकते हो लेवल ऑफ डेलीगेशन से। अगर लोग डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनको आगे ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सही बात है। So internally, our culture is over-indexed about, within the org, right? Transparency, right? Candidness. वो लोग कैसे openness to मिलते हैं? feedback. क्योंकि ये इनहेरेंटली नॉट नेचर नहीं है लोगों को काम करने का। During hiring process, right, you need to spend more time with the potential candidates. राइट, सो ज्यादा टाइम स्पेंड करके समझ में आ जाता है कि ऐसा, मतलब दिस इज नॉट अबाउट एंड व्हाट इफ यू हायर समवन रॉन्गली, उसको तुरंत निकाल देते हैं। फीडबैक दो, राइट, एंड शो देम द मेरिट ऑफ सच काइंड ऑफ कल्चर। वंस पीपल स्टार्ट सीइंग द मेरिट, इन लोगों में चेंज जनरली आ जाता है। एंड उसके बाद भी अगर चेंज नहीं आ रहा, इफ देयर इज अ क्लियर मिसफिट, देन ऑफ कोर्स यू विल पार्ट वेज। नीरज, दो चीजें आपने बहुत अच्छी की हैं। एक, आई हैव नोटिस्ड दैट यू हैव अट्रैक्टेड वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ टैलेंट इट योर सीनियर लीडरशिप। और दूसरा, व्हिच इज आई थिंक फार मोर वैल्यूएबल, इज दैट नो वन फ्रॉम योर टॉप लीडरशिप हैज लेफ्ट इन द लास्ट 3, 4, 5 years. ये कैसे करते हो? Two things, basically, to both attract and retain people. You should have really a meaningful, जो ही बोले इसको हम, चाहे विजन बोले, मिशन बोले, पर्पस बोले, राइट? अगर एक रियल पर्पस है which everybody is able to relate to, then it really becomes easy to attract and convince people, right? लोगों का मिशन ढूंढना मुश्किल होता है। एक बार मिशन से अलाइन हो गए, फिर उनका जाना मुश्किल होता यार, है। तुम्हें अपना मिशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, राइट? जो भी कंपनी बिल्ड कर रहे हो, उसका जो भी पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल आउट देयर, दैट्स राइट। right? There will be some great people who naturally resonate with that purpose. You need to find those people जो naturally उसके साथ resonate कर रहा हो। तो अगर clear purpose है, strong purpose है, then you'll be able to find people, right, who naturally resonate with that purpose. And अगर उसके बाद there is a very high level of authenticity plus mindset to empower people, sharing the ownership, delegating in the real sense, then retaining those people won't be difficult. And also you have been scaling up very well. So लोगों का चैलेंज भी था हमेशा, तो they were always looking of something bigger to do. Right. So basically यहाँ पे 3 चीजें हैं. One is purpose, and second is authenticity, and third is basically sharing the ownership. अगर ये 3 चीजों पे compromise नहीं है, then I think finding and converting and retaining great people is not that difficult. सोचने में कितना आसान लगता है ना ये। Exactly. सोचना बोलना बहुत easy है, but इसको प्रैक्टिस में लाना, practice करना बहुत तो difficult है. एक दो इंस्टेंट तो जहाँ फटने वाला था and then you somehow recovered from that. There are lots of instances, right? So I'll give you example of basically one of our USPs. So if you remember, right, we had very detailed discussion when we were implementing the fixed pricing model. Correct, I remember. So we were very clear, right? We were very clear कि fixed pricing model से operate करना चाहिए. So that makes the life of the customer very straightforward. Decision making becomes very confident, and every customer is getting the same deal, right? So जो best possible deal है वो सबको मिल रही है irrespective of their haggling. Systemic है. Systemic है. But India में even while buying a new car, there is a lot of negotiation. So used car तुम fixed price model पे कैसे operate कर सकते हो, right? So there were a lot of questions internally also, externally also, कि जैसे fixed pricing model पे जाएंगे, numbers गिरने start हो जाएंगे. Growth, सब लोग of course growth chase कर रहे हैं, तो growth आना तो दूर की बात है, numbers गिरने लग जाएंगे. That was the fear. But we were very clear कि यार, मतलब the kind of solution we set out to build, the kind of value creation we wanted to do for our customers, without such kind of initiatives, वो होंगे ही नहीं. So just for the sake of growth, we cannot postpone or keep deferring the right decisions, the right moves. So we still went ahead. That worked really very well for us also and for customers also. But जब वो implement करने की बात हो रही थी, तो there were a lot of concerns, lot of fear. मतलब ये fear भी था कि business crash हो जाए. But we still went it because we believed कि this is the right thing to do. अब इससे कुछ दिन के लिए growth stagnate होती है, कुछ दिन के लिए degrow कर जाते हैं. Business survival पे भी question mark है, right? तो ये सारे concerns के बावजूद we went ahead and we implemented that because we believed this is the right thing to do. And जब तुम ऐसी चीजें करते हो तो internally सारे लोगों को दिखता है. And ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, छोटी छोटी चीजें डेली बेसिस पे होती रहती है. So once someone is inside the system, they are able to see यार बोलते क्या है, करते क्या है. Authenticity. Culture of authenticity is extremely hard to create.
And many people think ki, such things matter only, while making big decisions. But I am saying ki even in the smallest possible things, जो daily basis पे हो रही है, you need to maintain that consistent theme. And people will see everything. एक और important aspect है यहाँ पे कि office के बाहर everybody is a customer. Their neighbors are customer. तो उनको पता है कि company अपने customers को actually में क्या offer कर रही है. Customers के लिए really में feel करती है नहीं है. Customer obsession just बोलने की एक बात है, actually में उसको practice कर रहे हैं. And when they see that happening on the ground, उनका conviction और further strengthen हो जाता है. कभी फील नहीं हुआ कि इसका कोई एक एंड पॉइंट है जहां पे जाके मुश्किल हो जाएगा ये फॉलो करना? ये विद टाइम और इजी होते चला जाता है. दिस इज अ वर्चुअस साइकिल. अब सिस्टम अपने आप उसको मेंटेन करता है. वाओ, आउटस्टैंडिंग. नीरज, नेक्स्ट क्या है आपके लिए, स्पिनी के लिए? आई नो दैट यू आर बिल्डिंग एंड यू विल कंटिन्यू टू बिल्ड. तो अभी तक अर्पित बेसिकली फिगरिंग आउट द राइट सीक्रेट सॉस, लेइंग द फाउंडेशन. अभी तक हम लोगों को बिल्डिंग द राइट टीम, प्रूविंग द मॉडल, फिगरिंग आउट स्केलेबिलिटी, प्रोडक्ट इंटीग्रेशंस, सम काइंड ऑफ परफेक्शन ऑफ प्रोसेसेस. अभी तक हम लोग उस जोन में थे. एंड गोइंग फॉरवर्ड ये फिगरिंग आउट मोड से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग मोड जो है, अब हम लोग उसमें एंटर करने वाले हैं. राइट, तो दैट इज द नेक्स्ट. उसका क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूशन बेस्ड का मतलब हो गया कि कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, राइट, नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्टेन लीडर्स. पीपल आर नॉट वर्किंग इन अ सर्टेन वे बिकॉज ऑफ मी, राइट. सो आई एम नॉट द आइडेंटिटी, आई एम काइंड ऑफ इररिलेवेंट. सो आप रूम में नहीं भी होगे तो भी ऐसे क्या करेंगे, ऐसे उनको करना है. या तो अभी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फेज में एंटर कर रहे हैं. दैट इज द नेक्स्ट. एंड देयरफॉर योर पर्सनल कंस्ट्रेंट्स, योर एबिलिटी टू ड्राइव थिंग्स और नॉट एबल टू ड्राइव थिंग्स. एग्जैक्टली. तो स्पिनी का नेक्स्ट वो है. एंड मेरे लिए नेक्स्ट ये है कि माई नेक्स्ट वर्जन विच इज एबल टू ड्राइव दैट फेज ऑफ. अभी तक तो बहुत सारा हार्डवर्क किया नीरज. आगे उतना हार्डवर्क कर पाओगे, I'm sure कर पाओगे, लेकिन हार्डवर्क से ही नहीं चलेगी, सिस्टम बनाने पड़ेंगे. Exactly. तो फिर वो सिस्टम बनाने के लिए नीरज को क्या करना पड़ेगा? हम लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं. तो और नीरज नहीं, आप डेलीगेशन, बहुत सीनियर लीडरशिप है, उन सबको करना पड़ेगा. So, delegation are basically core part of that approach. Building the right team, bringing right people in the company, building the long-term mindset, right? And then empowering people, right? And delegating, sharing the ownership. वो सब उसी का part है. We are already on that trajectory, but business के और भी nuances थे. तो अभी तक उधर decent, effort and mind share जा रहा था. But वहाँ पे काफी कुछ figured out सा लग रहा है. तो going forward, institution building पे थोड़ा और ज्यादा focus होगा. And we are very sure कि 2 years down the line, 3 years down the line, the company will be in a very different orbit altogether. आपके दिन का सबसे enjoyable part क्या है आज? सबसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, राइट. 2-3 चीजें मैं बोल सकता हूँ. तो व्हेन यू सी कि एक कार की डिलीवरी लेने सेम फैमिली से 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, इन सम केसेस इवन मोर देन 10 पीपल आर कमिंग एंड यू कैन सी द स्माइल ऑन देयर फेसेस. तो वो काफी एक्साइटिंग और काफी मूविंग होता है, राइट. हम लोग डेली बेसिस पे वो देख रहे हैं, बट हमारे लिए वो डेली इवेंट है. बट किसी एक कस्टमर के लिए तो इवेंट है. हाँ, लाइफ का फर्स्ट इवेंट है. So we are able to relate with that still, right? And I hope we will keep, relating with that. That is one. And second is we see our team members really enjoying their work. जो भी वो लोग implement कर रहे हैं, process reiterate कर रहे हैं. And जब भी कुछ वहाँ पे, successfully implement हो रहा है, कुछ अगर fail भी हो रहा है, तो उससे जो learning आ रही है, and the way, they perceive that and the kind of excitement or satisfaction or the further motivation they get out of those kinds of experiences, that is equally motivating for us, right? So These I are two think important such things. Yeah, these are the two most important. Does it ever feel that you have arrived? Feeling chase कर रहे हो? What arrived? Nothing. कुछ भी नहीं है ऐसा. अभी हमने किया ही क्या है, कुछ भी बहुत नहीं आगे किया. जाना है. बहुत आगे पता नहीं बहुत आगे क्या होता है, बट अभी आज सच हमने कुछ भी नहीं किया, राइट. सो जब तक तुम मार्केट का मतलब एक सर्टेन शेयर ओन ना कर लो, राइट, एज आई मतलब ऑलरेडी टोल्ड, राइट, कि अभी तो जस्ट एक काइंड ऑफ सीक्रेट सॉस फिगर आउट किया. रियल इम्प्लीमेंटेशन या सरफेस स्क्रैच किया. रियल इम्प्लीमेंटेशन, रियल एग्जीक्यूशन, रियल बिल्डिंग, राइट, रियल ग्रोथ, रियल मार्केट शेयर ओनरशिप, तो वाली जर्नी तो अब स्टार्ट होगी. तो अराइव्ड का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता है. एंड अराइव कोई कभी नहीं होता यार, ऐसा मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट. इट्स अ जर्नी. ठीक है, इट इज स्टिल डे 1. इट विल कंटिन्यू टू बी डे 1. अमेजिंग. नीरज, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा क्विक फायर क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे. लास्ट खाना क्या खाया यार? अभी तो इस पॉडकास्ट से पहले वी हैड टी एंड बिस्किट्स. ओके, फेवरेट बुक बताइए. व्हाट इंस्पायर्स यू? यार एक बुक है, राइड ऑफ लाइफटाइम. कौन है ऑथर, याद है? Bob Iger है, right? So ex-president of Disney. So that book is really amazing, right? And very motivating, very moving. So that is one book I would like to recommend to everyone. So this is the second podcast I am doing. I am generally very media shy.
हम लोग थोड़ा heads down execution वाले लोग हैं. Thank That you is for what doing we this know for and us. that is what we do. First podcast I did with I know. Anand from Excel. So उसमें भी Anand asked the same question and I mentioned the same book. So that book is I've really heard that amazing. podcast. It's very good. Thank you for doing that. What is the best piece of advice you've gotten? Openness to feedback. तो जनरली देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं फीडबैक से, और कई लोग जो मतलब ऑफेंड नहीं भी होते हैं और फीडबैक के लिए ओपन भी होते हैं, प्रोएक्टिवली दे डोंट सीक फीडबैक. तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वी मस्ट प्रैक्टिस. सो यू शुड बी वेरी ओपन फॉर फीडबैक. यू शुड नॉट. Goes back to your honesty and authenticity. हाँ, वहीं से लिंक्ड है. एंड आई बिलीव कि एवरीबडी इज ऑन देयर ओन रिस्पेक्टिव लर्निंग जर्नी, एंड लर्निंग जो रियल सेंस में पावर होती है वो फीडबैक से होती है. और फीडबैक का मतलब जस्ट ये नहीं है कि किसी दूसरे पर्सन से ही फीडबैक मांगना. देयर इज अ फीडबैक सिग्नल इन एवरीथिंग अराउंड यू. Yes. You have to be open to taking it. What do you like to do? I know you are a big long ride fan. What is the most favorite holiday idea for you? ड्राइविंग इन माउंटेन्स. Last time कब गए? लास्ट टाइम मैं गया था. आइडियली मतलब आई वांट टू डू एवरी अल्टरनेट मंथ, बट उतना फ्रीक्वेंटली Being हो in नहीं Delhi has पाता. an advantage. You can drive. Delhi, being in Delhi is Great of course advantage. You can advantage, great advantage. Lots of places to drive around, right? Roads are good. Last time I went to drive in mountains was last week of March. Last week of March? काफी टाइम हो Wow, गया. that's too late by your standard. 4 महीने हो गए. Need to take a vacation. Favorite failure? कुछ failures मन नहीं करता सोचने का, पर कुछ failures अच्छी लगती हैं, sweet सी लगती है, मजा आता है सोच के कि अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ. अब there are lots of failures. मैं तो मेरी स्टोरी तो failures भरी हुई है. से भरी पड़ी है. कुछ टाइम पहले तक मतलब every failure used to really pain me. But now मतलब as you rightly articulated it, तो अब तो सारी sweet memory लगती है. So there is no investor in the country जिसको मैंने pitch नहीं किया हो. वो early 17 to mid 19, so more than 200 rejections. So पहले काफी pain होता था सब सोच के, right? लेकिन now all those meetings are really really sweet memories. How does your support system, wife, kid, Family has been super supportive. Without them, मतलब मैं continue नहीं कर पाता. So they believed in me. They kept supporting me. They also had to go through a lot of suffering because of being with me. So without their unconditional support and so much of trust and faith in me, ये सब नहीं हो पाता for sure. Okay, one last thing. Spinny का best customer experience. क्या feedback कुछ मिला होगा, किसी ने comment किया होगा, कोई story बताओ. There are so many. Now मतलब एक ऐसा common theme emerge होने लग गया है, which is coming across, ऐसा नहीं कि किसी एक particular market से, across all markets. And most of the reviews में ये line अब common सी line होने लग गई है कि buying car from Spinny was better than even buying a new car. And that is what we wanted to Amazing. prove. 7 साल के बाद customer की मुझे सुनाई दे रही है. एक तो customers बोल रहे हैं कि यार ये तो new car buy करने से better था. So that is really encouraging, and that motivates us to do even better. Right. Lovely, Neeraj. It was amazing to have you with us. This X Unicorn podcast first episode. Thank you for your time. Thank you, Arpit. Thanks a lot. Yeah, I really enjoyed this time with you. I'm sure it was very valuable to all the listeners. बहुत सारे entrepreneur आपकी लाइफ से स्टोरी सीख के कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी उनको, और ये तो ऑथेंटिसिटी क्या, क्यों और किसके लिए का फ्रेमवर्क है, ये मैं अपने लिए भी लेके जा रहा हूँ, और होपफुली यूज इट मोर ऑफन देन आई ऑलरेडी डू. थैंक यू. Thank you, Arpit. Thank you all for checking out X Unicorns. This podcast is the Bloom Ventures offering, and we will be releasing a new episode every Tuesday. Our sound engineer is Shrey Tibari, and our producer is Vedant Nayak of Manic Pod Studios. Cheers.